एक दफ़ा आप ले लें, you touch it once, then you are unable to leave it. It just gets hold of your mind, your body, and it affects your mental and physical abilities. Assalamu alaikum ji. I am Maleeha Khwaja. I am an educationist since the past 19 years. I've been in education. I've been teaching O and A level kids, and now I am the headmistress of one of the private schools in Lahore. And I would like to take you on the journey of how I got involved with this substance abuse awareness campaign for the youth in Lahore. And I would like to tell you my own story, that my nephew, who was 25-year-old, he lost his life to substance abuse. And since then, myself and my family, we thought on third day of his death, we thought we are not going to tell everyone that he died in his sleep, because we could not save our nephew, but we wanted to save the other children of Lahore, of Pakistan, to tell them, to aware them that this is a menace, this is a disease, this is growing in Pakistan, and we must do something about it. So as a family, we got up, my bhabhi, who lost her only son, my sisters, my brother. We decided that we'll have a group, an NGO. We'll all talk about it, and we call it Lahore ko jeenay do. Lahore ko jeenay do, why? Because please just stop this production, distribution of drugs amongst the youth, and have a heart, and we all must get together to save them. So we just started with a small group, and we held seminar. Now we hold walks, we hold talks, we go to colleges, we go to schools, and we talk about it. As much as we can in our small capacities, we are all working, but we find time out to talk about it. Because we've seen our nephew suffering. He wanted to get out of it, but it became a disease. It took over his whole life. So when it took over his life, he was struggling, because you touch drug once, एक दफ़ा आप ले लें, you touch it once, then you are unable to leave it. It just gets hold of your mind, your body, and it affects your mental and physical abilities. So what we thought was to tell children, tell the youth, and tell everyone that it's not a joke. We all need to get together and talk about it and get up and do something. How my nephew got into it was, जब वो प्रेप स्कूल में था, माली ने उसको क्लास 8th में था वो बच्चा, हाई स्टडीज़ में उसका टॉप में आता था वो, लेकिन उसको एक माली ने कहा, बेटा ये पाउडर आप चखें और आप बहुत तेज़ भागेंगे. स्पोर्ट्स होती थी, स्पोर्ट्स का नहायत शौकीन था, तो उसने उसको बिलीव किया और ले लिया. कई दफ़ा आप ये नहीं कह सकते कि दोस्तों ने लगा दी, इसने लगा दी. कई दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आप स्कूल में बच्चे को कोई माली दे दे, कोई बाहर से कोई दे दे. तो अब पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पे आ जाती हैं. मेरे भाई भाभी बहुत खुद पिक एंड ड्रॉप करते थे, उनकी कोई फॉल्ट नहीं है. उन बेचारों को क्या पता कि उनका एक अकलौता बेटा इस चीज़ में पड़ जाएगा. वो तो बहुत तैयार करके प्यार से स्कूल भेजते हैं माँ बाप, क्या पता है कि वहाँ से भी कोई इस नशे में लगा देगा. मैं क्योंकि एजुकेशन में हूँ, पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत क्लोज़ होना चाहिए. इतना क्लोज़ कि उनको पता हो
कि उनके दोस्त क्या कौन हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो किस कंपनी में मूव अराउंड कर रहे हैं। पेरेंट्स को तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अब ये मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा और मसले मसाइल होते हैं। कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, कोई मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को लुक आफ्टर कर रहे हैं, पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं भूल सकते कि उनके पास एक जीता जागता एक उनके पास बच्चा है, बच्ची है, उसको उन्होंने लुक आफ्टर करना है। वो महसूस करता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट आप पे डिपेंड करती है। इसीलिए क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैं अभी एक वाकया सुना रही थी कि मेरे स्कूल में एक बच्चा जिसकी हंसी किसी ने छीन ली, वो अब मुझे समझ नहीं आ रही है, बच्चा हंसता खेलता, इसको क्या हुआ, क्यों ये चुप कर गया। तो बच्चे को जब बुला के पूछा, बेटा क्या बात है, मे बी हम आपकी मदद कर सकें, क्या है ऐसा। उसने कहा, आई डोंट लाइक इट व्हेन माई पेरेंट्स फाइट, और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद देखें, ये बच्चा जो है, हम नहीं रियलाइज करते, हम अपनी डेली लाइफ में मसरूफ हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बच्चों के सामने लड़ रहे हैं। इतनी सी चीज़ अगर हम ये ध्यान कर लें कि बच्चे के सामने हमने क्या कहना है, उसके दिल और दिमाग पे क्या असर हो रहा है, तो आप काफ़ी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। एक बच्ची पिछले दिनों आई कि माई पेरेंट्स डोंट लव मी, दे लव माई यंगर सिबलिंग, सो शी वॉज बींग निगलेक्टेड। ऐसे इतने वाक़यात हैं कि आप छोटी सी चीज़ अवॉइड कर लें, आप बच्चा आपसे नहीं करेगा ना कन्फाइड, he won't confide in you, he will find somebody outside the home to talk to, and that's when it starts, because he's emotionally disturbed and he finds that there's nobody at home who can listen to him. He finds somebody outside, friends who are doing drugs, then you've lost your child. He's lost his mental and physical health, and there you go. ये बच्चे जब ड्रग्स में पढ़ते हैं, एक कोई वजह होती है, फिज़िकली, इमोशनली, सेक्सुअली अब्यूज़ हुए होते हैं या निगलेक्ट में होते हैं। और ये क्यों होता है? एब्सेंस ऑफ अ पेरेंट। आपने किसी को ऐसे को ट्रस्ट कर लिया और उस बच्चे को उधर छोड़ दिया जहाँ कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें ये चीज़ों का देखें, अब बच्चा किया है तो ख्याल करना हमारा फ़र्ज़ है, और ये छोटी चीज़ें हैं, ये अवॉइड हो सकती हैं। और जॉइंट फैमिली एक नेमत है, दादी दादा घर पे होना, बिकॉज़ वो ख्याल रख लेंगे। अगर मतलब हर एक को ये जॉइंटली बच्चा रेज़ करना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में। अगर आप इस सोसाइटी को एक सेन ह्यूमन बीइंग देते हैं ना, आपने बहुत बड़ा काम किया होता है। हम हाउसवाइफ्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो बहुत कुछ कर रही होती हैं, वही एक सेन बंदा हमें ला के देती हैं, लेकिन बच्चों की डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम ही बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है कि हमने अपने बच्चे को किस तरह करना है। पूरा टाइम देना होता है। जब पेरेंट बन जाएं, आप भूल जाएं कि आपकी ये ख्वाहिशात हैं, आपका ये है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत होती है ताकि उसकी सेन मेंटल डेवलपमेंट हो। बच्चा सारे एक जैसे इस दुनिया में आते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम हाउ वेल वी मैनेज एंड ग्रूम हिम, or we leave him on his own to be lonely and look for things like drugs which will destroy his whole life, and पछतावा किसको होगा? हमें। कुछ साइंस होते हैं that we have to look out for, that why has he stopped being clean, why has he lost his appetite, and why the child's grades are dropping. That's the first sign. Grades drop हो रहे हैं तो there's something behind it. We must investigate that. And then from the children's point of view, I would like to say that children must tell each and everything to their parents. They must confide in their parents, even if parents are busy.
We realize parents have a lot of responsibility, but children should also take in their hand to confide with their families only with their families. Outside world is very dangerous for children. They must not go out and confide. And most important, even if it's a friend offering something to eat or drink, we have to tell them कि strangers से नहीं लेना, बिल्कुल कुछ खाने पीने का नहीं लेना. ये तो पहली चीज़ है कि ये आपको बच्चे को सिखाना है, चाहे वो अभी अर्ली ईयर्स में ही क्यों ना हो, आपने बच्चे को ये सिखाना होता है. ये मेरा सारा मकसद पेरेंट्स को ये टॉक देने का is not to undermine parents. They are doing a great job. All parents want कि उनके बच्चे बहुत अच्छी तरह वो रेज करें, लेकिन कहीं किसी तरफ थोड़ी बहुत इग्नोर हम कर देते हैं. मैं हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ वो वक्त ना आने दें कि पीछे मुड़ के देखें तो पछतावा हो. सो माय मैसेज इज़ दैट लुक आफ्टर योर children, and we all can do it together, that we can all, it's a very easy thing to look after the children, and it's very difficult to get out of drugs if a child gets into it. Thank you.